Hello everyone, this side Akash Raghav from Target Integration and today I would be delivering a short demo on Odoo जिसमें मैं आपको शो करूंगा sales to payment process which is SOP process in businesses. So let's start. So this is the home page of Odoo. These are all the applications which I have installed currently in the database. So मैंने install करा है CRM, sales, accounting, purchase, inventory. So this is called an icon based view. जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड फोन्स और मे बी एप्पल फोन वी डू हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस प्रोसेस इन Odoo. सो लेट्स स्टार्ट विद द लीड प्रोसेस. सो इन Odoo हम दो टाइप से सर्च कर सकते हैं. आइदर आई कैन जस्ट क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन एंड टाइप लीड्स. सो एज सून एज आई स्टार्ट टाइपिंग Odoo मुझे सर्च बार शो कर देता है जहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, लाइक लीड्स या प्रोडक्ट्स या सेल्स ऑर्डर में भी. और द सेकंड वे इज मैं CRM एप्लीकेशन में जा सकता हूँ एंड देन आई कैन क्लिक ऑन लीड्स और यहाँ पर मुझे सारी लीड्स जो भी मेरे डेटाबेस में और जो भी मेरे Odoo में अभी हैं वो मुझे शो हो जाएंगी. नाउ Odoo अगेन कम्स अप विद डिफरेंट व्यूज. लाइक ये हमारे पास लिस्ट व्यू है, लाइक एन एक्सेल फॉर्मेट, और यहाँ पर यू कैन सी डिफरेंट कॉलम्स हैं और हम विजिबिलिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं इन कॉलम्स की और इन डेटा की. लाइक वी कैन क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स हियर एंड वी कैन जस्ट सेलेक्ट कि हमें क्या चीज़ विजिबल करनी है और क्या चीज़ विजिबल नहीं करनी है. लेट्स सपोज वी हैव टू हाइड कंपनी, सो आई कैन अनटिक कंपनी. तो इस तरीके से मैं अपना डैशबोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो भी मुझे चाहिए बेसिकली. सो दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट व्यू. Then the second view we are having is Kanban view. Kanban view कुछ नहीं होता है but a tile view in which all the leads will appear as a tile. Now, the next thing is we do have an option to search easily in Odoo. Those are, we do have filters. Let's suppose मैं list view में वापस जाता हूँ. Let's suppose I want to list everything based on the country, for example country of the lead. So I can click on group by and I can select my country option here और Odoo automatically यहाँ पर मुझे सारी leads को ग्रुप कर देगा based on the criteria which we have put. तो जैसे कि मैंने ग्रुप बाय करा था कंट्री से, so Odoo सब कुछ कंट्री से ग्रुप बाय कर देगा, लाइक बेल्जियम, ब्राजील, लाइक इटली. फ्रॉम इटली वी आर हैविंग 2 लीड्स, इंडिया से 1 लीड्स है हमारे पास. And now we can again use search bar and filter. So let's suppose I want to filter by whatever leads have been lost. So I can just put a filter lost. And जो हमारा search criteria था पहले country, again it would be there. But अब एक और filter add on हो गया, that is lost. So in this way we can use filters and group by very easily and very adaptively to search and to find the exact leads जो भी आपको चाहिए. Or based on the search criteria, we can easily filter out based on the criteria which you have put here. Now, let's suppose I will open a lead from India that is branded office furniture. Now, let me open branded office furniture. So, this is a lead. This is a form of a lead in which it says branded office furniture and customer is Akash Raghav from India. Now, there are some other fields like job position, like if Akash Raghav is working for a company, I can put in the company name, the address, then the job position, phone, mobile number, who is the salesperson. So like there are only 2 users which are there in the database, like Akash and Mark Demo. If we have multiple sales person in this team, हम उनको यहाँ पर easily drop down से add कर सकते हैं. Similarly, we can add sales team also. Like हम जो users हैं उनको हम divide कर सकते हैं. Let's suppose कि जो आपकी sales team है, those are divided based on the country. So we can create a sales team हर एक country के लिए, like for India, maybe for America, maybe for Japan, and then we can easily associate that lead to a country. Now, then if I scroll to the bottom, we would have this entire area is called a chatter box. So if I want to like let's suppose मुझे अपनी लीड से डायरेक्ट मेल भेजनी है कस्टमर को, so I can click on send message and I can put in like let's say hello Akash, thanks for the inquiry.
सो जैसे ही मैं सेंड करूंगा सो ईमेल यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा टू whoever the customer is, in this case is it is Akash, तो आकाश को एक ऑटोमेटिकली एक मेल ट्रिगर हो जाएगा. नाउ द सेकंड थिंग इज दिस इज अ चैटर बॉक्स. सो ये एंटायर हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखेगा यहाँ, नॉट ओनली जस्ट अ मेल thread but entire history. So if I make changes, let's say I change the I will convert it to an opportunity, वो सब यहाँ पर चैटर बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाए. और once Akash have replied to that same email अपने मेल बॉक्स से, it would also appear in my chatter box here. Now we can also schedule activities here, such as let's suppose I want to call Akash maybe after 7 days. So I can select an activity type that says call him, and the due date to call him is let's suppose 11th of January, and I can assign it to someone else. So अगर मेरे पास सेल्स टीम है, मतलब मैंने यूजर्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं उडू में, सो मैं उनको यहाँ पर इजीली असाइन कर सकता हूँ. सो उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही मैं किसी यूजर्स को असाइन करूंगा ये एक्टिविटी, सो उनके कैलेंडर में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस दिन इस लीड पे कॉल करना है. ये जो भी एक्टिविटी टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे बाय डिफॉल्ट उडू ये एक्टिविटीज टाइप देता है, लाइक मीटिंग, कॉल, ईमेल, मेक कोट, फॉलो अप कोट. बट ये एक्टिविटी टाइप्स वी कैन कॉन्फ़िगर इजीली फंक्शनली इन दी उडू सिस्टम. देन मैं एक समरी भी डाल सकता हूँ यहाँ पर, एंड वंस आई हैव लाइक कॉल आकाश फॉर फॉलो अप लेट्स सपोज, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँ. जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यू कैन सी अगेन हमारा जो चैटर था उसमें एक एक्टिविटी करके एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा. और जब ये एक्टिविटी हो जाएगी, जो भी जिस भी यूजर के लिए ये असाइंड है वो इसको मार्क डन कर सकता है और अपना फीडबैक लिख सकता है कि कॉल पे क्या डिस्कस हुआ था. सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल, एंड सो अगेन ये भी हिस्ट्री यहाँ पर लॉग्ड हो जाएगी दैट आकाश ने कॉल डन करी थी एंड ही डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट. सो इन दिस वे हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम वन सिंगल लीड कि उस पर क्या काम हो रहा है, हु इज डूइंग द एक्टिविटीज, या कौन मेल भेज रहा है, क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स था. सो वी कैन इजीली ट्रैक एवरीथिंग फ्रॉम द चैटर सेक्शन इन उडू. नाउ लेट्स सपोज ये जो मेरा कस्टमर है आकाश राघव, लेट्स सपोज ये ही इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, सो we can convert it to an opportunity. So opportunity क्या होता है, it is nothing but it is a like a लीड जिसने कि बिजनेस में इंटरेस्ट शो करा है और जो कि एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है आगे चल के. सो ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आई कैन कन्वर्ट दिस टू एन अपॉर्चुनिटी. सो वंस लाइक जैसे मैं कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करता हूँ, एक पॉपअप आएगा कि क्या आपका कन्वर्जन एक्शन है, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आकाश के लिए क्या आपके पास ऑलरेडी आपको किसी अपॉर्चुनिटी से मर्ज करना है या आपको नई अपॉर्चुनिटी बनानी है. सो इस केस में मैं एक नई अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा. मैं सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि आकाश था और सेल्स टीम थी सेल्स, एंड आई विल से कि लाइक उडू देन विल आस्क लाइक बेस्ड ऑन द कस्टमर, इज इट अ न्यू कस्टमर और क्या वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या आप उसको लिंक करना चाहते, किसी से लिंक नहीं करना चाहते. So why Udo shows this pop-up is for the data duplicacy. कि क्या पता कि आकाश के नाम पे 2 लीड आ गई बट आपने गलती से उनको 2 कस्टमर बना दिया अपने डेटाबेस में. सो उसका क्या ड्रॉबैक होगा कि डेटा डुप्लीकेसी हो जाएगी, मतलब एक ही लाइक आकाश इज सेम बट उसके 2 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे डेटाबेस में. सो आई विल से कि फॉर दिस एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कस्टमर एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट अपॉर्चुनिटी. सो this has been turned into a opportunity now. So I will go back to my CRM dashboard and मैं आपको यहाँ शो करना चाहता हूँ, ये मेरी CRM पाइपलाइन है. So उडू में क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट इज लीड, जैसे लीड ने इंटरेस्ट शो करा या यू कैन सी मतलब कि वो कि जो कस्टमर है वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है, सो हम उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे जैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं वो हमारी पाइपलाइन में आ जाता है. देन बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड दीज आर दी पाइपलाइन स्टेजेस. सो हमारे पास अभी जो स्टेज है वो है न्यू, क्वालिफाइड, प्रोपोजिशन एंड वॉन.
अगर आप कुछ और स्टेजेस चाहते हैं वो इजीली कन्फिगरेबल हैं उडू में, जैसे कि आप यहाँ से न्यू स्टेज भी ऐड कर सकते हैं, आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं. सो दोज काइंड ऑफ स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप वी कैन डू इजीली आउट ऑफ द बॉक्स इन उडू. नाउ लेट मी ओपन my lead which has now turned to an opportunity, जो कि है ब्रांडेड ऑफिस फर्नीचर आकाश राघव. एंड आई कैन ऑल्सो दी स्टार्स जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आप इनकी प्रायोरिटी हाई और लो सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर इस अपॉर्चुनिटी की प्रायोरिटी हाई है तो आप उसको 3 स्टार दे सकते हैं, जो कि सबसे ऊपर शो होगा फिर आपके डैशबोर्ड में. सो सिमिलरली ये अपॉर्चुनिटी का डैशबोर्ड है. सो अगेन इट कम्स अप विद अ लिस्ट व्यू. सो दिस विल अपीयर एज अ Excel format in like an Excel format with rows and columns. और ये हमारे पास Kanban view है where these will appear as a tile. Now I will open my branded office furniture. So again ये new stage में आया है. I can like you can see this is a form for you. Like आप यहाँ पर details fill कर सकते हो, आप extra information डाल सकते हो. So similarly आप इसमें again आप यहाँ से सेंड मैसेज कर सकते हो, जैसे आप लीड से कर रहे थे. जैसे आपने देखा कि आकाश ने चेंज करा, सो आप उडू वाज एबल टू ट्रैक कि इट वाज चेंज फ्रॉम लीड टू एन अपॉर्चुनिटी. सो आप इजीली सब कुछ यहाँ से ट्रैक कर पाओगे. नाउ लेट्स सपोज आकाश जो कि मेरा कस्टमर है इस केस में, ही इज इंटरेस्टेड फॉर द बिजनेस. So I can change the status of the opportunity from here itself. Like I can just click on the stage qualified or proposition or won from here itself, or I can go back to pipeline and I can easily drag and drop the opportunities from one stage to another. So this is how easily you can change the status of the opportunity. आप एक opportunity में जाके जो ये स्टेटस बार है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और आप पाइपलाइन में जाके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. So this is how we change status of our opportunity in a pipeline. Now the next thing is हमने इसमें opportunity बना ली. Let's suppose Akash is asking for a quotation. So not only like ये जो पूरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, दिस इज अ फॉर्म, राइट? बट ना सिर्फ फॉर्म, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ डैशबोर्ड फॉर यू. डैशबोर्ड इन द सेंस कि आपने जो मीटिंग इसके साथ शेड्यूल करी होंगी इस अपॉर्चुनिटी के साथ, दोज विल अपीयर हियर इन दिस स्मार्ट बटन. सिमिलरली जो आपने सेल्स ऑर्डर बनाए होंगे या कोटेशन बनाई होंगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो भी यहीं पर शो हो जाएंगी हमें. नाउ हम क्लिक करते हैं न्यू कोटेशन इन ऑर्डर टू जनरेट अ कोटेशन फ्रॉम अ अपॉर्चुनिटी. सो आई विल क्लिक ऑन दिस बटन. सो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा कोटेशन पेज पे. सो जैसी मेरी कोटेशन आ गई, आई विल से so I will start adding my products. So पहला प्रोडक्ट, let's suppose I am selling cable management box. So मैं ड्रॉप डाउन से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूंगा. ऑटोमेटिकली जो भी हमने उस प्रोडक्ट पे यूनिट प्राइस वगैरह सेटअप करा होगा, टैक्सेस सेटअप करे होंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपअप हो जाएंगे. आई विल से कि मैं 5 क्वांटिटीज जनरेट कर रहा हूँ फॉर दिस, एंड माई सेकेंड प्रोडक्ट इज मीटिंग. Then I will say, let's suppose chair, office chair. And I will say कि मैं 5 quantities of office chair and 5 quantities of cable management box अपने कस्टमर को दे रहा हूँ. Now हम इसकी एक्सपायरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोटेशन की, that this quotation will expire on 6th of January. सो ऑटोमेटिकली उस वक्त ये एक्सपायर्ड स्टेटस में चला जाएगा, विच मीन्स कि दिस वॉज अ ऑफर टिल 6 फॉर आकाश राघव. अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट्स वेल एंड गुड, और एल्स दिस कोटेशन विल एक्सपायर ऑटोमेटिकली. नाउ वी कैन ऑल्सो डिफाइंड पेमेंट टर्म्स कि लेट्स सपोज आकाश राघव इज गोइंग अहेड with this quotation. So क्या payment terms रहेंगी, like how in 15 days will he pay or will it be an immediate payment? So वो कैसे पे करेंगे वो हम यहाँ से easily select कर सकते हैं. Plus हम we can configure these payment terms according to the business needs. So इस केस में मैं for example immediate payment select कर लेता हूँ. So once I have selected this, मुझे सब total show होगा, SGST CGST show होंगे based on the setup of the taxes.
नाउ इसी वे में वी कैन ऐड मोर प्रोडक्ट्स in the quotation, or we can add section also. Why section is like why we use section is to classify the quotation much more like in a format कि client को अच्छा लगे देखने से. So let's suppose मैं section add करता हूँ that says box, and मैं इसको ऊपर drag कर देता हूँ, sorry, बॉक्स, एंड मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ चेयर, और उसको मैं यहाँ मूव कर देता हूँ. सो दिस इज हाउ यू कैन सी सेक्शन हेल्प करते हैं कि अगर आप अराउंड लाइक मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लाइक काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं आपकी कोटेशन में, तो हम ऐसे सेक्शन ऐड कर सकते हैं और क्लब कर सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को. लेट्स सपोज आप मशीन्स बेच रहे हो तो एक्स टाइप ऑफ मशीन एक सेक्शन में आ जाए जितने प्रोडक्ट्स हैं. सिमिलरली लाइक अगर ज़्यादा बॉक्सेस होते तो मैं उनको यहाँ ऐड कर देता ताकि वो क्लाइंट को देखने में अच्छा लगे और वो ईजी टू अंडरस्टैंड भी हो. सो वंस मैंने कोटेशन क्रिएट कर लिया, आई विल सेव दिस. और अगर मुझे वापस अपने अपॉर्चुनिटी पे जाना है तो आई कैन जस्ट क्लिक 1 स्टेप बैक फ्रॉम हियर और मैं वहां से जा सकता हूँ. सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक नॉट ओनली फॉर्म, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ डैशबोर्ड, विच मीन्स यू कैन सी हमने एक कोटेशन यहाँ पर क्रिएट करी थी अभी, सो वो यहाँ पर आ गई. सो अगर मुझे यहाँ से एक्सेस करना है, मैं यहाँ से सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इजीली उस सेल ऑर्डर पे या कोटेशन पे मूव ऑन हो जाऊंगा. नाउ वंस आपने कोटेशन बना लिया है, यू कैन सेंड इट बाय ईमेल. सो आई कैन क्लिक लाइक इस बटन पे क्लिक करके a pop-up will open like in the same way like हमारे Gmail या Outlook में होता है. और again we can use different templates. So you can see this is a template जो ये लिखा हुआ आया है, hello your quotation this amounting and this is ready for review. So again this is customizable and configurable easily based on the business requirements कि आप क्या चाहते हैं कि email में कैसी बॉडी जाए. So once ये यहाँ से ऑटोमेटिकली इसमें PDF भी अटैच हो जाएगी आपके सेल ऑर्डर की, एंड आई वंस यू हैव क्लिक ऑन सेंड, एक ईमेल ट्रिगर हो जाएगा और यू कैन सी कोटेशन से अब कोटेशन सेंट में स्टेटस चेंज हो गया है ऑटोमेटिकली हमारी कोटेशन का. और अगर मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे, यू वुड सी इन द चैटर दैट जो मेल हमने ट्रिगर करी थी दैट इज अपीयरिंग हियर. नाउ यहीं पर हम एक्टिविटीज भी अगर हम चाहते हैं, लाइक लीड में जो हमें एक्टिविटीज थी या जो अपॉर्चुनिटी में थी, हम वो यहाँ से भी एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं कोटेशन लेवल पे. सो जो उसका ट्रैक है वो कोटेशन लेवल पे रहेगा सब कुछ. अगर हमें आपको लाइक आपको कुछ PDF अटैच करनी है या डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अटैच फाइल करके आपको जो फाइल आपको अटैच करनी है आप इजीली उसको अटैच कर सकते हैं आप. नाउ वंस ये कोटेशन सेंड स्टेट में चला गया, नाउ लेट्स सपोज आफ्टर सम टाइम आपका कस्टमर आपके पास आता है एंड आकाश, लाइक इन दिस केस आकाश, ही सेज ओके आई वांट टू गो अहेड विद द सेल्स ऑर्डर. सो वो कंफर्म कर रहा है सेल्स. सो आप इस सेल्स ऑर्डर पे आके, सो इसके लिए मैं जाऊंगा अब सेल्स एप्लीकेशन में. आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, बट आई वांट टू शो यू हाउ सेल्स एप्लीकेशन लुक्स लाइक. सो मैं सेल्स एप्लीकेशन में जाता हूँ. सो ये मेरा सेल्स का डैशबोर्ड आ जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेटस की जो ये कोटेशन थी वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है और वो सेल्स ऑर्डर स्टेटस में जा चुकी है. सो हम अपनी कोटेशन को यहाँ से ओपन करेंगे, सेल्स ऑर्डर 26, और यहाँ से हम कंफर्म का क्लिक कर देंगे. वंस मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, बिकॉज पहले आप इसमें कोटेशन में ऐड कर रहे थे डिटेल्स लाइक आपको कौन से प्रोडक्ट डिलीवर सेल करने हैं. अब अगेन दिस विल एक्ट एज अ डैशबोर्ड फॉर यू. डैशबोर्ड इन द सेंस कि यहीं पर आप देख सकते हैं डिलीवरी ऑर्डर जनरेट हो गया है इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए जो आपने अभी सेल करे. नाउ सेकेंड, और यहां से मैं 2 कॉलम्स भी ऐड कर रहा हूं विच आर डिलीवर्ड एंड इनवॉइस. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेसेबल मैट्रिक्स कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर थी, कितनी डिलीवर हो चुकी है और कितनी इनवॉइस हो चुकी है. सो अभी हमने कुछ भी डिलीवर नहीं करा है, ना ही इनवॉइस करा है. सो दैट इज वाई ये आ रही हैं 0 में. नाउ मैं अपनी डिलीवरी पे यहां से जाता हूं
आई वुड सी दैट एक प्रोडक्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है विच इज केबल मैनेजमेंट बॉक्स, और जो एक प्रोडक्ट है इन दिस केस इज ऑफिस चेयर, वो एक्सपेक्टेड है ऑन 30th of 12, लाइक कोई परचेज ऑर्डर होगा जो ओपन होगा, सो दैट इज वाई इट इज कमिंग अप एज not available. You can see 0 on hand are coming, 35 are incoming. और सो मैं वापस जाता हूँ डिलीवरी ऑर्डर पे. आई कैन क्लिक ऑन दिस लिटिल ग्राफ हियर विच इज अ फोरकास्टेड रिपोर्ट. सो मैं इजीली उस पर यहाँ से जा सकता हूँ और यहाँ से आई कैन ट्रैक एंटायरली कि WH in लाइक इट इज अ इनकमिंग शिपमेंट फ्रॉम अ परचेज ऑर्डर, वहाँ से ये इसकी 27 क्वांटिटीज फोरकास्टेड हैं और कोटेशन में जो यूज हो रही हैं लाइक वो हैं 5. सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे परचेज ऑर्डर हैं जहाँ से वो इनकमिंग हो रहा है वेयर हाउस में, और ये दीज आर ऑल दी सेल्स ऑर्डर जहाँ से वो मूव आउट होगा. नाउ आई विल ओपन वन ऑफ देम फ्रॉम हियर इटसेल्फ and office chair is 35. I will validate this. Why validate? Which means I am bringing this office chair in stock for 35 quantities. So like let's suppose जब भी वो रिसीव होगा आप उसको ऐसे रिसीव कर सकते हैं and it will be available for the stock. So अगर अब मैं अपने डिलीवरी ऑर्डर पे जाऊं सेल ऑर्डर से, you can see automatically वो रिजर्व हो गया है. Why रिजर्व इज क्योंकि वो क्वांटिटी अवेलेबल थी हमारे पास. अब वेयर हाउस में क्योंकि मैंने रिसीव कर ली तो वो डिलीवरी के लिए यहाँ पर रिजर्व हो गई. सो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ इस पे डिटेल्स पे एंड आई कैन से मैं इसको डन कर देता हूँ 5 क्योंकि ये सीरियल नंबर से ट्रैकेबल है. आई विल कंफर्म दिस एंड ऑफिस चेयर भी मैं 5 डिलीवर कर रहा हूँ तो आई विल से 5 ऑफ दिस आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड. और मैं यहाँ से वंस लाइक मैंने जैसे अपने डिमांड को मैच कर लिया कि मैं इतने डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से उनको चेंज कर सकता हूँ और मैं वैलिडेट कर सकता हूँ. अगर आपके पास फॉर सम रीजन कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है उस टाइम अवेलेबल तो हम उडू में बैक ऑर्डर बना सकते हैं. लेट सपोज कि मैं 5 डिमांड ना कर फुलफिल करके आई विल ओनली फुलफिल 4 एंड मैंने अपने कस्टमर को कहा है कि मैं जो रिमेनिंग 1 क्वांटिटी है दैट आई विल डिलीवर इन द नेक्स्ट वीक. सो आई विल वैलिडेट दिस. सो वंस आई क्लिक ऑन वैलिडेट, उडू will show me a pop-up message that says you have processed less products than the initial demand. So इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में हमारी डिमांड थी 5 जो कि कस्टमर ने ऑर्डर करा, बट हमने उसको डिलीवर कर रहे हैं हम ओनली 4. So उडू इज आस्किंग कि आप डू यू वांट टू क्रिएट अ बैक ऑर्डर या नो बैक ऑर्डर. क्रिएट अ बैक ऑर्डर मीन्स कि जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं यू एक्सपेक्ट टू डिलीवर देम लाइक इफ यू एक्सपेक्ट टू प्रोसेस द रिमेनिंग प्रोडक्ट्स लेटर तो हम क्रिएट बैक ऑर्डर कर सकते हैं. और अगर आपको वो डिलीवर नहीं करना है, आपको ओनली 4 फुलफिल करना है तो नो बैक ऑर्डर. सो इन दिस केस आई विल क्रिएट अ बैक ऑर्डर कि जो रिमेनिंग 1 क्वांटिटी है मेरी वो मैं बाद में डिलीवर करूंगा अपने कस्टमर को. सो जैसे ही मैं इसको वैलिडेट करूंगा ये डन स्टेटस में चला जाएगा. नाउ अगर मैं बैक जाऊं अपने सेल ऑर्डर पे, आप यहाँ पर देखेंगे कि केबल मैनेजमेंट बॉक्स मैंने 5 डिलीवर्ड कर दी थी तो डिलीवर्ड कॉलम में 5 आ गया, और ऑफिस चेयर जो कि 5 क्वांटिटी थी बट मैंने डिलीवर 4 करी तो वो डिलीवर्ड आ गया. तो सेल्स ऑर्डर से ही आपको एक पूरी आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप कितना आपने डिलीवर करा है और कितना इनवॉइस कर चुके हैं और कितनी ऑर्डर्ड क्वांटिटीज थी. और सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि हमने एक बैक ऑर्डर बनाया था तो एक और डिलीवरी जनरेट हो गई है जो कि उस रिमेनिंग प्रोडक्ट के लिए होगी. तो आप देख सकते हैं एक ऑलरेडी डन स्टेटस में जा चुकी है जो हमने वैलिडेट करी थी, और जो दूसरी वाली है वो दैट इज सिटिंग इन रेडी स्टेटस और उस पर डिमांड 1 है जो कि हमने लास्ट टाइम डिलीवर नहीं करी थी. नाउ कमिंग बैक टू माय सेल्स पेज, बिकॉज ये कोटेशन थी तो यहाँ पर जस्ट कंफर्मेशन का स्टेटस दिखाता है. बट अगर मैं कंफर्म सेल्स ऑर्डर देखना चाहता हूँ तो मैं आई विल क्लिक ऑन ऑर्डर्स हियर और मैं ऑर्डर्स पे जाऊँगा. Once I go on the orders, I will see my, these are only like once I click on orders and orders, this will only show me the confirmed sales order, like confirmed quotations जो हैं. Now इसमें हमारी वाली जो है स्लाइड ब्लू में आ रही है क्योंकि उसका स्टेटस है टू इनवॉइस, विच मीन्स कि आप डिलीवर कर चुके हो कुछ और अब आपको इनवॉइस जनरेट करना है उसके लिए. तो मैं इस पे अपने सेल्स ऑर्डर पे जाता हूँ. आई विल क्लिक ऑन क्रिएट इनवॉइस. सो जो भी हमारी डिलीवर्ड क्वांटिटीज होंगी उनका इनवॉइस ये बना देगा. सो अगेन दैट इज
अप टू यू कि उडू में दो इनवॉइसिंग पॉलिसी होती है। वन इज ऑन डिलीवर्ड क्वांटिटीज, विच मीन्स जो जितनी क्वांटिटीज भी आप डिलीवर करोगे उतने का ही उडू इनवॉइस बनाए, और द सेकंड वन इज ऑन ऑर्डर्ड क्वांटिटीज, जिसका मतलब होता है कि जितनी क्वांटिटीज आपने ऑर्डर करी है उतने का आप इनवॉइस बना सकते हो, चाहे आपने वो डिलीवर करे हो या ना करें। देन वंस आई क्रिएट अ इनवॉइस, उडू विल शो मी दीज 3 ऑप्शन की रेगुलर इनवॉइस है या डाउन पेमेंट है। सो हम रेगुलर इनवॉइस पे जाते हैं, क्रिएट एंड व्यू इनवॉइस। सो अब सेल ऑर्डर से मैंने एक इनवॉइस जनरेट कर दिया है जिसका नंबर आ गया है कस्टमर इनवॉइस 001, और ये ड्राफ्ट स्टेटस में आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और किस सेल्स ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग ये सेल ऑर्डर इनवॉइस बना है वो भी यहीं से शो हो जाएगा। नाउ इसका टोटल आता है 819। सो जितने भी प्राइस हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, वो सेल्स ऑर्डर से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको कुछ भी एंट्री मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग विच यू हैव टू चेक इज द इनवॉइस डेट, कि आप कब लाइक व्हाट इज द अकाउंटिंग डेट ऑफ द इनवॉइस, कब आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो वो डेट, और यहाँ पर प्राइस वगैरह सब ठीक है या नहीं वो दैट यू हैव टू चेक। एंड बेस्ड ऑन द इनकम अकाउंट्स एंड एक्सपेंस अकाउंट्स एंड एवरीथिंग सेट अप ऑन द प्रोडक्ट्स, these are the journal entries that would be created. So जो हमारी लोकल सेल्स अकाउंट है विच इज इनकम अकाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली डेटर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और जो आपके SGST पेबल और जो CGST पेबल है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि वो टैक्सेस सेटअप पे डिफाइन होते हैं, उस बिहाफ पे ये क्रेडिट हो जाएंगे। नाउ अगेन ये ड्राफ्ट में रहेगा। अगर आप इसको यहाँ से प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, आप मेल करना चाहें यू कैन सेंड मैसेज फ्रॉम हियर। नाउ जब ये सब कुछ हो लाइक वंस दिस इज ऑल ओके, आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं और ये पोस्टेड स्टेटस में चला जाएगा। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं सेंड एंड प्रिंट ऑप्शन में, एंड अगेन अ पॉपअप विल ओपन लाइक अ नॉर्मल ईमेल बॉक्स, एंड ये ईमेल बॉडी आ जाएगी दैट अगेन कैन बी इजीली कॉन्फ़िगर्ड। आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली इट विल आल्सो अटैच अ PDF। अगर आपको कुछ और अटैचमेंट ऐड करनी है इन दिस ईमेल, यू कैन क्लिक ऑन अटैचमेंट एंड यू कैन लोड इट फ्रॉम हियर, और फिर यू कैन क्लिक ऑन दिस सेंड एंड प्रिंट, और द ईमेल विल बी ट्रिगर्ड टू आवर कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम Odoo। And this is all this is how your inbox this is how in the chatter it looks like. Now if I scroll on the top, now this is in the posted status. Now let's suppose our customer has paid, so in that case I will register a payment. So I will click on this button register payment. To register payment I will say कि किस जर्नल में, मतलब how he is paying us, either through bank or cash. अगर बैंक है so we can create different journals for that, for each bank, और हम इस ड्रॉप डाउन से easily select कर सकते हैं किस बैंक से या what is the mode of payment. So मैं बैंक select करूंगा, I will select the amount, I will select the date कि payment date कब है, and I will click on create payment. As soon as I create payment, this will move into a paid status. और अगर हम उसकी और हमारा जो इफ आई स्क्रॉल डाउन यू विल सी टोटल वाज 819, पेड ऑन 4th of January 819, और जो अमाउंट ड्यू है दैट इज 0 रुपीज। अगर यही एक मतलब पार्शियल पेमेंट होती तो अमाउंट ड्यू जो होती वो यहाँ पर हमें शो हो जाती। अगर आपको पेमेंट देखनी है सो मैं अकाउंटिंग डैशबोर्ड में जाऊँगा, अपनी अकाउंटिंग एप्लीकेशन में, सॉरी, एंड आई कैन क्लिक ऑन कस्टमर्स, और मैं यहाँ पर पेमेंट्स पे क्लिक करूँगा और मेरी पेमेंट मुझे शो हो जाएगी कि आकाश राघव ने 819 ऑन 4th of January को पेमेंट मुझे दी थी। तो सिमिलरली अगेन ये पेमेंट किस इनवॉइस पे टैग्ड है वो भी मैं यहीं से चेक कर सकता हूँ, एंड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या जर्नल एंट्री क्रिएट हुई है वो भी यहाँ यहीं से मैं इजीली चेक कर सकता हूँ। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर कस्टमर पेज Akash Raghav. So मैं यहाँ click, so I have clicked on Akash Raghav from here, and this will navigate me to the contact page. We call this in Odoo. So again this will like ये भी एक फॉर्म है जहाँ आप फिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स लाइक हु इज आकाश राघव, उसकी टैक्स ID क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है। बट नॉट ओनली फॉर्म, ये एक डैशबोर्ड की तरह भी एक्ट करेगा। डैशबोर्ड की तरह एक्ट इन द सेंस आप यहीं से देख लोगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आकाश राघव के लिए, कितने सेल्स ऑर्डर हैं,
अगर वो वेंडर है तो कितने परचेजेज हैं, और कितना टोटल इनवॉइस हुआ है यहाँ पर। लाइक 780 हमने इनवॉइस करा था, तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसे ही उसका पार्टनर लेजर हम डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो मोर पे जाके पार्टनर लेजर पे क्लिक करके, सो दिस विल शो मी अ पार्टनर लेजर। लाइक इन दिस केस वो हमें सारा अमाउंट पे कर चुका है, तो डेबिट क्रेडिट इज इक्वल और बैलेंस। सो ये डायरेक्टली हम यहाँ से क्लाइंट को भी भेज सकते हैं इजीली, और वी कैन download it in PDF or Excel, and this is how we can get to a partner ledger very easily in Odoo. So this is where it comes to an end of SOP process, like sales to payment process. Thank you for your time. Have a nice day, everyone.